to give you solutions. So many of you were asking me about ethics subject, and you were asking that how we should write the paper, how to draw the diagrams, and the most important part, the most tough part that we can say is time management. See, when we talk about ethics now, so you have to understand that it's true also. ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास? The first important issue that we face is time. ठीक है, imagine now, you know, when we talk about ethics, the amount, the number, right, basically, you know, the importance of ethics paper. ठीक है, तुमने देखा होगा कि सिलेक्शन वाले बच्चे, ठीक है, and those who are not selected, दोनों के बीच में एथिक्स में ना you'll find a huge difference. ठीक है, दोनों के बीच में तो तुम्हें कम से कम भी 70-80 नंबर का डिफरेंस दिखाई देगा, right? And when we talk about this number, this is the large number we are talking about, and this is why nowadays, especially UPSC aspirant, they are, you know, focusing on this paper. क्यों? क्योंकि जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं ना, तो this is the game changer paper we are talking about. ठीक है, तो इसीलिए एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस, हाउ टू मैनेज दिस टाइम, है ना? बिकॉज यू नो वी हैव टू रीड द केस स्टडी आल्सो. फिर उसके बाद में रीड करने के बाद कीवर्ड्स पे फोकस करना है ना? कीवर्ड्स पे फोकस करने के बाद वो लिमिटेड हमें आंसर लिखना है ना? क्योंकि you read the first part of ethics is what, you know, full of keywords. Attitude is there, aptitude is there, utilitarianism is there, deontology is there. So many keywords are there, right? Now you have to explain those keywords in what, 150 words and 250 words में कैसे करोगे, है ना? So that's exactly the problem. So first of all, time management is there, reading is there, then you have to basically write in such limited words also, right? तो ये सारा का सारा criteria जो है, it should be, you know, understood properly. So the solution to this problem is what? The solution to this problem is first of all practice. PYQs बहुत important है, ठीक है? तुम क्या करो? 4 से 5 साल के PYQs उठा लो, right? And try to write your answers. Listen, when we talk about these keywords now, everyone can understand it. Okay? Aptitude is there, attitude is there, right? But what you are understanding is a general definition. But when we deep dive, you will know that aptitude is, you know, totally different than what you were understanding and what you were learning. ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें philosophers ने कुछ बोला है जो कि UPSC को चाहिए with the examples, right? So what you have to do, you have to understand that what utilitarianism is, ठीक है? उसको एक लाइन में explain कर दिया. Examples की बात आती है तो 2 से 3 लाइन examples में तुम लिखने पड़ेंगे, ठीक है? And when we talk about ethics, current affairs, तुम उसमें डालने पड़ेंगे, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेगी, है ना? सो लिसन, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, वो टाइम मैनेजमेंट होगा तुम्हारा पहले तो स्पीड से, ठीक है? फिर उसके बाद एनालाइज करना शुरू करो इसी चीज में कि यू नो व्हाट आर द रिपीटेड थिंग्स दैट वी आर सीइंग इन दीस केस स्टडीज, ठीक है? तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, है ना? और उसके बाद में एनवायरनमेंट, ये एक केस स्टडी तुम्हें हर साल मिलेगी. Now if we know that we are getting this case studies each and every time, तो इसके पहले से कीवर्ड्स प्रिपेयर करो, राइट? एंड इफ वी हैव कीवर्ड्स और ऑलरेडी हमारे पास में लाइब्रेरी जो सिचुएशन चल रही है, राइट, वी हैव यूज फॉर दैट, तो एग्जांपल तुम्हारे पास में है, right? And if we have examples, there are so many thinkers who said, you know, about related to environment, related to development, so we should prepare thinkers as well. Now if we are prepared with these, now हमारे पास में कीवर्ड्स भी प्रिपेयर है, एग्जांपल भी प्रिपेयर है, थिंकर्स भी प्रिपेयर है, तो हमारा टाइम तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बच जाएगा ना, राइट? एंड द अनदर प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग, रीडिंग. Once you will be used to it, once you will be, you know, used to the, you know, problems, once you will be used to that type of case studies जो कि UPSC बार-बार रिपीट करता है, तुम्हारे यहाँ पर 2 से 3 मिनट इजीली बच जाएंगे. रीडिंग में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी केस स्टडीज ना कुछ ऐसी आती है, where you have to understand the situation, where you have to understand the role and responsibilities, right? उसके बाद में तुम्हें समझनी पड़ती है चीजें, right? But you know the pattern, you know exactly what UPSC asks, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में वापस से वो चीज बैठ चुकी है एक बार पढ़ने से, you do not have to repeat it again and again, ठीक है? तो तुम्हारा यहाँ पे रीडिंग में भी टाइम बदल गया, राइट? उसके बाद कीवर्ड्स, you have read paper 1 so properly that you exactly know that, you know, what that word means, right? तो कीवर्ड की तो मैं यहाँ पे इशू नहीं आएगा, है ना? अब उसके बाद में 150 and 250 word is a challenge. When we talk about this, what you have to do? You have to do practice. There are 2 types of students when we talk about, ठीक है, UPSC. एक तो वो होते हैं, वो are very good at writing long answers, ठीक है? जवाब नहीं होता उनका, वो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं long answers की अगर हम बात करते हैं, right? They can write in 1000 words, 2000 words. They are very good at it, right? Because they have so much of content, है ना? और उसका content होना ही important नहीं होता है. They exactly know that how to put that content in a proper way, right? So we have that kind of student. Now after this, there are students who exactly know कि short answer कैसे लिख सकते हैं,
राइट, दे आर गुड इन राइटिंग शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। अब जब हम शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कोई अगर चीज है उसको छोटा करके एग्जैक्टली प्रिसाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम लॉन्ग आंसर की बात करते हैं कि ये वाले बच्चे तो वो यहाँ पे लैग करेंगे 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीस शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स, राइट, दे विल लैग ओवर हियर। और वो कहाँ पे लैग करेंगे? वो लैग करेंगे एसे राइटिंग में। और बेसिकली तो हमें पता है कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो यहाँ का सॉल्यूशन भी हमारे पास में क्या है? द सॉल्यूशन दैट वी हैव इज प्रैक्टिस एंड रीड एज मेनी थिंकर्स एज पॉसिबल, ठीक है। जितने थिंकर्स तुम रीड करोगे तुम्हारी आइडियोलॉजी उस तरीके से चेंज होगी, तुम्हें वर्ड्स उतने ज्यादा मिलेंगे, तुम्हारे पास एग्जांपल्स उस वे में होंगे, तुम्हारे पास करंट अफेयर्स उस वे में होंगे, राइट। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये सारी की सारी चीजें मैनेज कैसे करके चलो, प्रैक्टिस के साथ में, मतलब पीवाईक्यूज उठाने के साथ, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ देयर इज वन मोर थिंग। देखो एक केस स्टडी एग्जांपल लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ना सिचुएशन है कि एक आईएएस ऑफिसर है जिनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बेसिकली पोस्ट मिली है और वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है इज प्रपोज्ड ऑन हिज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें ओके अब एक केस स्टडीज ये वाली लेकर चलेंगे। तो देखो अब तुम्हें सिचुएशन दी गई है। तुम्हें सिचुएशन क्या दी गई है? तुम आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, और तुम्हारा रोल क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो तुम, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला है, तुम्हें प्रपोज किया गया है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, राइट, एंड यू आर बेसिकली प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट की जो जरूरत है, राइट, अब यहाँ पे जो है लैंड एक्विजिशन की क्लियरेंस चाहिए तुम्हारी तरफ से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या समझ आ गई कि ये डेवलपमेंट के बेसिस पर चीजें हैं, ठीक है, समझ लिया, लिख लिया मैंने कीवर्ड्स, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में, राइट। नाउ व्हेन एग्जामिनिंग द फाइल यू आर नोटिसिंग दैट पब्लिक कंसल्टेशन विद विलेजर्स वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स आर वीक, सम ट्राइबल फैमिलीज may lose and without proper rehabilitation, ठीक है। When you informally raise concern, your senior officer tells you that all departments have already cleared it, this project is politically important, don't create unnecessary hurdle. So this is the what? This is the situation that we have. Now, after this, your colleagues advise you if you oppose your transfer, ठीक है, again warnings are here. You feel pressure to confirm, यहाँ पे है तुम्हारे पास में dilemma, यहाँ पे बात हो गई ethics की. So now let's understand with one case study, ठीक है, case study के थ्रू समझेंगे कि exactly problems कैसे arise होती है हमारे पास में, time कैसे manage करना है, words कैसे लिखने हैं, keywords कैसे लिखने हैं। तो अब यहाँ पे हमें situation दी हुई है, situation क्या दी हुई है? That you are an IAS officer, ठीक है, district development officer बेसिकली एज अ पोस्ट तुम्हें मिली हुई है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज हुआ है, राइट, टू योर डिस्ट्रिक्ट, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये प्रॉमिस करा एम्प्लॉयमेंट भी देगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देगा, और उसके बाद में ग्रोथ में हेल्प करेगा, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स व्हाट? इसको क्लियरेंस चाहिए, राइट, फ्रॉम यू। सो द होल रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन हू? ऑन यू, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला गया कि पब्लिक कंसल्टेशन विद विलेजर्स वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये जो है ये सिचुएशन अराइज हुआ है व्हाइल चेकिंग द फाइल। तो ये सारी चीजें तुम क्या करते हो? ये सारी चीजें तुम नोटिस करते हो कि पब्लिक कंसल्टेशन विद विलेजर्स दैट वाज इनकम्प्लीट, उसके बाद में एनवायरमेंटल इंपैक्ट का जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा वीक है। सो दिस इज द डिलेमा बिटवीन व्हाट? डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट आल्सो। तो ये लिख लिया हमने कीवर्ड, डिलेमा लिख लिया यहाँ पे। अब सब ट्राइबल फैमिलीज में लूज लैंड विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। अब यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की भी बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद में व्हेन इनफॉर्मल रेज कंसर्न्स, तो अब यहाँ पे तुम्हारी यहाँ तक ये सिचुएशन अराइज हुई है। सो देयर आर सीनियर्स हु आर टेलिंग दिस दैट यू डू नॉट हैव टू इंटरवेन, यू जस्ट हैव टू साइन, जस्ट पास इट एंड देन मूव ऑन, ठीक है। अगर नहीं करोगे सो एंड सो सिचुएशन में तुम्हें डाल दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज द डिलेमा, दिस इज द सिचुएशन यू हैव। तो तुम्हें क्या करनी है? तुम्हें बेसिकली रिपोर्ट साइन करनी है एंड देन यू हैव टू पास इट ऑन, और उसके बाद में बस बात वहां पर खत्म हो जाएगी। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? या तो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, या फिर तुम पर फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर एलिगेशंस लगा दिए जाएंगे। वी ऑल नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, राइट। सो देयर आर अथॉरिटीज व्हिच आर प्रेशराइजिंग यू, ठीक है। ये सिचुएशन तुम्हारे पास में है। Now when we talk about this, तो these are the dilemmas that you are facing, ठीक है। अब इतनी सारी सिचुएशन तुम फेस कर रहे हो। Now the question arises that what are the ethical issues involved in this case studies, ठीक है। ethical issues क्या क्या है यहाँ पर, right? Then identify the stakeholders also। अच्छा, stakeholders कौन से होते हैं? stakeholders की अगर हम बात करें तो देखो
क्वेश्चन में कभी कभी केस स्टडीज में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया सो दैट यू कैन हैव बेसिकली अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं कि जो जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट, व्हाटएवर एडमिनिस्ट्रेटर आर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है, इफ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस, इफ सिटीजंस आर इन्वॉल्व इन दिस, इफ यू आर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है, तो जो जो नाम यहाँ पर अथॉरिटीज के नाम और तुम्हारा नाम और उसके बाद में सिटीजंस, राइट, पीपल, ईच एंड एवरी वन, राइट, हु इज इंक्लूडेड इन दिस केस, यू हैव टू राइट देयर नेम, सिर्फ नाम लिखना है वहां पर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे जगह पर ना स्टेक होल्डर्स मिस हो जाते हैं। सो इफ यू आर बेसिकली मिसिंग स्टेक होल्डर्स, सो इट मींस यू आर लूजिंग वन मार्क ओवर देयर, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट एंड गिविंग इट इंपॉर्टेंस आल्सो। अब इसके बाद में विच मैकेनिज्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कंफर्मिटी की, ओबीडियंस की और उसके बाद में नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की। ये सारे क्या है, ये है कीवर्ड्स जो कि तुम्हें पार्ट 1 में दिखाई देंगे ऑफ द सिलेबस ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया कंफर्मिटी है, ओबीडियंस है, राइट, या फिर नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अभी तुम डायरेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन वन लाइन, एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल्स के साथ में, 2 से 3 के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स का लिंक करके डाल दो, ठीक है। दिस इज इट। अब उसके बाद में व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच। तो ये सिचुएशन है, राइट, दिस इज द केस स्टडी दैट वी हैव। अब देखो if we have to write in such short words, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं डायग्राम्स। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द केस स्टडीज। किसी भी एग्जामिनेशन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें बेसिकली नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे वर्ड्स, इतनी सारी चीजें इतने छोटे से आंसर में कैसे लिखेंगे, तो डायग्राम्स प्ले ह्यूज रोल इन बेसिकली आंसर्स, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास में सपोज वी हैव दिस स्टेयरकेस, ठीक है। अब ये हमारा जो ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट। सो दिस टेल्स अबाउट व्हाट, ये बेसिक दिखाता है, ये इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस को हायर करता रहता है। दिस इज द नेसेसिटी दैट इज टेलिंग टू अस, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे हो गया पिटी, यहाँ पे हो गया बेसिकली एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन इज देयर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ, राइट। तो या तो तुम ये वाला ग्राफ बना सकते हो, राइट। देन दिस इज टेलिंग अबाउट द टाइम्स की क्या क्या इश्यूज है हमारे पास में, जो तुम डायग्राम्स में यूज कर सकते हो। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग one liner or 2 liner, you made the diagram। अब तुम्हारे यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, so you made the diagram। so when we talk about this ना, देखो क्या हेल्प करेगा, पहली चीज तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम बच गया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइनर्स यू मेक द डायग्राम। दूसरी चीज वर्ड लिमिट की जो प्रॉब्लम थी दैट इज आल्सो सोल्व्ड, ठीक है। तो 2 चीजें का तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो टाइप्स में तुम ये पिलर्स बना सकते हो, ठीक है। ऐसे पिलर्स बना दो, ठीक है, ऐसे पिलर्स बनाओ और उसके बाद तुम डायग्राम्स दिखा दो। जैसे कि अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके प्राइम फीचर्स की बात करें गवर्नेंस की, तो हमारे पास में क्या है, इथोस इज देयर, ठीक है, उसके बाद में एथिक्स इज देयर, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास में उस चीज के लिए, तो वो डाल दो तुम यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास में 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये चीज तुम कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू डायग्राम, एज इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। डिविजन है, सब डिविजन है, उसके लिए तुम ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो, राइट। So these are the things that can save your times only. These are the things that can save your time also and save your word limits also. ठीक है, देखो when we talk about ethics subject ना, तो this is not something to be taken as light subject, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की importance day by day, year by year it's like increasing। जब हम लोग ethics के पेपर की बात कर रहे हैं तो we are talking about 250 marks over here, ठीक है। और केस स्टडीज इज लाइक हाफ ऑफ द एथिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पेपर की, ठीक है। व्हाटएवर कीवर्ड्स यू हैव अंडरस्टूड इन पार्ट 1, ठीक है, वही सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तुम्हें केस स्टडीज में। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन केस स्टडीज इज टाइम, वर्ड, डायग्राम एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, एंड दैट विल कैन ओनली बी डन थ्रू द पीवाईक्यूज। जब आप लोग उसे एनालाइज करोगे, प्रॉपर्ली समझोगे, ठीक है। And I know this subject is something that you have to understand। अभी तो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, you'll be doing it practical also, because what UPSC wants to know कि जब तुम्हें ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा, जब तुम्हें ऐसे डिलेमा में रखा जाएगा, what are the actions you'll be taking, ठीक है। So you have to balance the approach in there। So this is it for today, and I'll be coming with more case studies. We'll solve it together with keywords, with diagrams, and we'll learn more about saving time also, saving words also। Thank you so much for listening।